आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। Isolated. ठीक है, which is against the nature, but they are also mathematically they are also isolated. So limit point, the concept of limit point and sequence वो start किया था हम लोगों ने. Let a n be a sequence of real number and alpha any real number. हाँ, हो चुकी, लिखा नहीं रहे आप लोग, छापोगे तो जब फिर से मैंने कहा आप लोग कहा छाप रहे. आई जस्ट स्टार्टिंग विद द पीछे दौड़ के आने नहीं पड़ता, लॉन्ग जंप देखी नहीं है, वहीं से कूद जाते हैं क्या खड़े खड़े, कितनी दूर से दौड़ के आते हैं ना. दैट इज द मोमेंटम की वहां से जाके देखिए सीधे यहां जंप करेंगे, लिमिट पे पहुंचेंगे सीधे. देख रहे हैं A and B is a sequence of real number, alpha belongs to R, and if for all delta positive, whatever delta we choose, alpha minus delta, alpha plus delta intersection, rather तभी कहता है this belong to this for infinite values of n, then we say alpha is a limit point of sequence an. And then we have two cases. अगर कोई अल्फा ऐसा कर रहा होगा ना, तो उसके पास इन दोनों में से एक कंडीशन या दोनों को होल्ड करना जरूरी है, कम से कम एक को होल्ड करना जरूरी है. पहला कि दिस an इक्वल टू अल्फा फॉर इनफाइनाइट, या तो यही हो जाए, और alpha belong to S prime where S is range an. ठीक है, ये दोनों में से कोई ना कोई तो होना चाहिए. अब कोई कहे सर रेंज तो मेरी फाइनाइट है, when S is finite, S prime is empty, so no such alpha. In that case, if sequence wants to have limit point, this is the only possibility, है ना. In this way we elaborate the term limit point completely, कि if you say range is finite और range is set of such kind of subset of R which cannot have limit point. N के पास होता है limit point, Z के पास, N के किसी भी सबसेट और Z के किसी भी सबसेट के पास, तो any subset of N और Z cannot have limit point ACP, और ये S prime is always empty. So in that case this is the only possibility. And for this an equal to alpha for infinite values of n means this is actually fn, जहां से स्टार्ट हुआ था डेफिनेशन. व्हाट इज an? fn, image of n under some function f which is from n to r. Definition of sequence is what? A map from n to r defines a sequence. So what is an? Fn. So what you are saying? Fn equal to alpha for infinite values of n. मतलब infinite natural numbers की इमेज सेम अल्फा आ रही है. फंक्शन इज मैनी वन, और इन मैनी में एक इनफाइनाइट वाला सिस्टम भी है कि देयर आर इनफाइनाइट नेचुरल नंबर विच आर मैप टू सेम. सो विच द फंक्शन विच आर वन वन कैन नेवर हैव सच काइंड ऑफ रिलेशन, इवन इफ दे आर मैनी वन डज नॉट इंप्लाई. क्या मान लो फाइव एलिमेंट एक जगह जा रहे हो, आपने देखा ना जो आपका फिबोनाची 10th एग्जांपल, a and a1 is 1, a2 is 1, मतलब f1 1, f2 1 हो गया मैनी वन, बट उसके बाद कोई रिपीटिशन नहीं है. और रेंज आएगी क्या? सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर. एंड सो दिस s prime is empty, so you cannot find any limit point here, but this also not correct, so that doesn't have any limit point. Example number 4, 5, 6, an equal to n, fourth example, minus n, fifth example, and minus 1 to power n into n plus n plus 1 into n, जो भी. This is sixth example. In these three example, the functions are defined 1 1. an equal to n, fn equal to n, fn equal to minus n, and fn equal to minus 1 to the power n into n. In all the cases, it is what? 1 1. So there is no repetition. So this is exhausted. But this is also exhausted because derived set of range, which is subset of n.
और z, है ना? सो 4, 5, 6 डज नॉट हैव एनी लिमिट पॉइंट. आपको ये जानना जरूरी है किसी सेट पर सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट कैसे निकलते हैं. आपको ये सीखना होगा गिवन अ सीक्वेंस हाउ टू थिंक वेदर दिस सीक्वेंस हैज लिमिट पॉइंट और नॉट. गॉट द आइडिया? यहां तो कोई दिक्कत नहीं है. तो जितने एग्जाम्पल अभी तक आपने देखे 1 to n, 1 to 30, इनमें आपको धीरे धीरे ट्राई करेंगे सब में लिमिट पॉइंट किसमें है किसमें नहीं है. क्लियर? जैसे बढ़ते जाएंगे आसान भी होता जाएगा क्योंकि नए रिजल्ट आपके पास होंगे देखने के लिए. अब एसीपी ऑफ अ सेट एंड लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस, डिफरेंस मेंटेन करना दोनों के बीच में. एसीपी ऑफ अ सेट, उसमें जो आते डिफरेंट डिफरेंट आते हैं ना, इनफाइनाइट मेंबर्स होते हैं सेट में. बट लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस वो दो तरीके हैं ना, बिना बदले भी वो वैल्यू चेंज किए भी लिमिट पर बनने को तैयार है, -1/n. नाउ सपोज सीक्वेंस an, छापना मत, पहले देख लीजिए. सपोज सीक्वेंस an इज बाउंडेड. क्या ज्ञान मिलता है इससे? रेंज इज बाउंडेड. रेंज इज बाउंडेड, इतना ही ना. डेफिनेशन ऑफ बाउंडेड सीक्वेंस व्हाट? रेंज सेट S इज बाउंडेड implies and implied by S equal to range, है ना, an is bounded. बाउंडेड होने के तरीके भी होते हैं. S is finite तब भी बाउंडेड, और S is infinite तब भी पॉसिबिलिटी है बाउंडेड होने की. मतलब बाउंडेड होने के लिए फाइनाइट होना जरूरी नहीं है और इनफाइनाइट होने का मतलब अनबाउंडेड होना जरूरी नहीं है. तो अ सेट इफ इट वांट्स टू बी बाउंडेड हैज टू पॉसिबिलिटी. इट कैन बी बाउंडेड बीइंग इनफाइनाइट और बीइंग फाइनाइट, बोथ. अगर S फाइनाइट है, इसका क्या मतलब? किसी सीक्वेंस की रेंज अगर फाइनाइट हो जाए तो क्या इंप्लाई करती है कि हाँ, कम से कम एक मेंबर S में ऐसा जरूर होगा जिसके पास इनफाइनाइट प्री इमेज आएगी. ये इंप्लाई कर रहा है? हाँ, नहीं आपके पीछे ठीक. हाँ ना, बोला क्या आपने? सब पता हमको, हम बेखबर सही पर सबकी खबर रखते हैं. हट जाओ, ठीक है. सोचिएगा बिल्कुल कूल होके ना, कंपोज होके. S is finite. It contains values of various members. One an is nothing but fn. It is range of a function whose domain is n. अगर रेंज में फाइनाइट एलिमेंट आएंगे तो कोई ना कोई इनफाइनाइट सेट एक ही जगह मैप करेगा. तो देयर हैज टू बी एन एलिमेंट. दिस इंप्लाइज दिस, ये अभी भी पूछ लीजिए, दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट अल्फा बिलोंग्स टू R सच दैट an इक्वल टू अल्फा फॉर इनफाइनाइट वैल्यू. ये कंफर्म है कि नहीं है? और अगर S मेरा, इफ S इज इनफाइनाइट इंप्लाइज S प्राइम इज नॉन एम्प्टी बाय B एंड W. क्योंकि S मेरा बाउंडेड है और यहां से आपने जैसे कहा इनफाइनाइट, तो S इज इनफाइनाइट बाउंडेड सेट एंड एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हैज एन ACP. और यहां आइए, इनमें से कोई भी एक हो जाता है तो इससे दिस अल्फा इज, if sequence is bounded, so either this will happen, but in this case alpha will become limit point of sequence. अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो दो केस, it range is finite और range is infinite. If range is finite, there must be alpha repeating itself infinite time, so alpha must be limit point of sequence an. Case 2, range is infinite, but if range is infinite, then S has ACP because S is infinite, bounded, and every ACP of S is what? Limit point. So in either case, sequence has limit point. Confirm. आपने जैसे ही बाउंडेड कहा, कंफर्म हो गया, सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट होगा. दिस इज कॉल्ड B&W फॉर सीक्वेंस. द फर्स्ट आर्टिकल टुडे इज B&W फॉर सीक्वेंस. Bolzano-Weierstrass theorem for sequence. Statement: every bounded sequence has a limit point. Every bounded sequence has a limit point.
एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट. प्रूफ समझ में आ गया? नॉट कन्वर्सली. अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड होगी तो लिमिट पॉइंट जरूर होगा. ये कैसे कंफर्म किया हमने? लिमिट पॉइंट तो जाना पहले होता क्या है? इफ अ रियल नंबर अपीयर्स इनफाइनाइट टाइम्स देन इट इज लिमिट पॉइंट, और इफ रेंज सेट हैज एसीपी देन इट इज लिमिट पॉइंट. ओनली टू पॉसिबिलिटीज. Now, given sequence is bounded, so its range set is bounded. Now, if range set is finite, appearance of a real number infinite time, so limit point. If range set is infinite, then bounded infinite by B and W for set, it must have ACP, and ACP of range set is also limit point. So, in both the cases, sequence has limit point. Confirm? So, every bounded sequence has a limit point. नॉट कन्वर्सली कि सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट तो बाउंडेड हो. 8th 9th एग्जाम्पल, 30th एग्जाम्पल. क्यू. व्हाट इज 30th एग्जाम्पल? व्हाट इज लिमिट सेट ऑफ लिमिट पॉइंट? पूरा आर. रेंज क्या है? क्यू. अनबाउंडेड, बट दुनिया भर लिमिट पॉइंट. बाउंडेड इंप्लाइज limit existence of limit point, not conversely. If a sequence has limit point, does not imply it is bounded. है ना? Does not imply it is bounded. Same, it was statement of the उसमें. If sequence does not have limit point, it cannot be bounded. Not Q implies not P. Bounded has limit point. If no limit point, unbounded. ठीक है. अ सीक्वेंस विच फेल्स टू हैव लिमिट पॉइंट इज अनबाउंडेड. जब भी P इंप्लाई Q करो तो Q इंप्लाई P भी कर लिया करो तुरंत. सीक्वेंस इज बाउंडेड इंप्लाइज लिमिट पॉइंट. इफ सीक्वेंस हैज नो लिमिट पॉइंट इंप्लाइज अनबाउंडेड. अगर कोई सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट नहीं है तो वो पक्का अनबाउंडेड होगी, क्योंकि B and W फॉर सीक्वेंस कहती है एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट. कंफर्म? कोई दिक्कत? जो अनबाउंडेड सीक्वेंस होती है ना, अच्छी होती है, क्योंकि वो अनबाउंडेड होती है ना. और चूंकि अनबाउंडेड इसलिए अच्छी है. P implies Q and implied by. If sequence is unbounded above, it means what? Just look at here. There exists a n1 which is greater than 1. If sequence is not bounded above, कोई ना कोई मेंबर तो 1 से बड़ा होगा पक्का. हर मेंबर नहीं, कम से कम एक मेंबर. -3, -2, -1, फिर 1, 2, 3, 4, 5 अनबाउंडेड. ये कहां 1 से बड़े हैं? ये 1 से बड़ा है, ये 1 से बड़ा है. हाँ बिल्कुल, बट ये 1 और ये 1 सुंदर लग रहा है. ठीक है. An1 एक मेंबर मिलेगा जो, इसको नाम पता नहीं कौन सा मेंबर है ये N1, 50वां 60वां, बट एक मेंबर मिलेगा जिसका नाम रख दिया मैंने N1 हियर बिकॉज आई एम टेकिंग. नाउ देयर इज अ मेंबर which is greater than 2 and there is a member which is greater than an1 as well. There exists a member which is greater than 1 and an1 both, और साथ में ऐसा n2 भी मिलेगा कि वो n1 मेरा n2 से बड़ा, n2 मेरा n1 से बड़ा हो. ऐसा मिलेगा नहीं मिलेगा? ये भी मिल जाएगा. एक ऐसा मेंबर मिलेगा जिसका सफिक्स इससे बड़ा हो, नहीं तो वो तो फाइनाइट सेट है ना. एक ऐसा जरूर मिलेगा जिसका सफिक्स इससे बड़ा हो 1, साथ में ये नंबर क्या हो, इन दोनों से बड़ा हो. क्योंकि उसके आगे जाके ढूंढ लेंगे ना, ये मिल गया उसके आगे जाके ढूंढ लेंगे, उसके और आगे जाके ढूंढ लेंगे. क्योंकि कितने मेंबर, इनफाइनाइट मेंबर्स, और कैसी सीक्वेंस है? अनबाउंडेड. भाई यहां से आता कितने मेंबर है? फाइनाइट मेमोरी तो है ना, तो बाउंड हो जाएगी ना. फिर तो अरे अब सोचो ना, अनबाउंडेड अबव है. ठीक है. ए अब यहां से लेके यहां, ये तो मिल गया ना, ये तो मिल गया, इसको भूल जाओ. ये तो मिल रहा है, नहीं मिल रहा है. नाउ कितने मेंबर इससे पहले हैं? अप टू n2 मान लीजिए 100, n2 इक्वल टू 100. सो a1 a2 a100. ठीक है. इससे पहले इतने मेंबर तो हैं. इसके सारे बाद के मेंबर, जो भी बाद के मेंबर है, वो क्या इससे छोटे होंगे?
तो बाउंडेड अबव नहीं हो जाएगी? इसके बाद के भी मेंबर ऐसे बहुत सारे होंगे जो इससे बड़े होंगे, उनमें से किसी सफिक्स इससे बड़ा ले सकता हूं मैं, तो हमें ऐसा N2 मिलेगा ना, जो हमेशा मिलेगा। इसमें तो कोई सेकंड थॉट ही नहीं है, क्योंकि हमेशा लोअर बाउंड मिलती जा रही है इधर। सो देयर एंड N1 इज ग्रेटर देन N2 इज ग्रेटर देन N1। सिमिलरली A N3 मिलेगा जो 3 से बड़ा होगा, यहां पे 2 लिखा, 2 से बड़ा और N1 3 से बड़ा, और A N2 से बड़ा और N3 किससे बड़ा? N2 से, एंड सो ऑन। तो मुझे क्या मिल रहा है, आप गौर से देखिए कि मुझे A N1, A N2, A N3 एंड सो ऑन, और A Ni इज ग्रेटर देन Ni। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिकली नहीं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, एंड दिस इंप्लाइज नॉट बाउंडेड अबव, क्योंकि जो भी नंबर उससे बड़ा तो मिल ही रहा है एन से। सो इन एवरी सीक्वेंस विच इज नॉट बाउंडेड अबव देयर एग्जिस्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अनबाउंडेड सबसीक्वेंस। हर अनबाउंडेड सीक्वेंस के पास अगर अनबाउंडेड अबव है तो आपको एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस मिल जाएगी, और बिलो है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस पक्का मिल जाएगी। एंड इन दिस वे यू कैन द एग्जिस्टेंस, जब स्टेटमेंट ऐसे बनते हैं ना क्वेश्चन के, तो तकलीफ देते हैं कि यार ऐसा एग्जिस्ट करेगा। अभी यही कर रहे थे हम लोग, कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, काउंटर एग्जाम्पल मिल जाए जिससे हम एलिमिनेट कर पाए। तो जिनके एग्जिस्टेंस कंफर्म है रट्टा मार लो, ठीक है। इफ सीक्वेंस इज नॉट बाउंड, नोट लगाइए BNW के बाद, इफ सीक्वेंस इज नॉट बाउंडेड अबव, if sequence is not bounded above, then there exists a strictly increasing subsequence A and K. There exists a strictly increasing subsequence A and K. ऐसी होती है subsequence A and K, such that A and K is greater than K। एक स्ट्रिक्ट तो है ही, तो वो तो ये मिल ही रहा है। साथ में ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये A N K के बारे में मालूम है, ये K से बड़ा है, K एक नेचुरल नंबर है। A N5 किससे बड़ा होगा? 5। अब N5 क्या हो सकता है? कोई नंबर, मान लीजिए N5 इज 20, तो 820 इज ग्रेटर देन 5, है ना। और आपको ये कंफर्मेशन यहां से मिल रहा है, जैसे इसने क्वेश्चन उठाया अभी, बिल्कुल सिंपल। फिर से आपको A N1 1 से बड़ा मिलेगा, A N2 2 से बड़ा मिलेगा, A N3 3 से बड़ा मिलेगा। कोई ना कोई मेंबर 1 से बड़ा, कोई ना मेंबर 2 से बड़ा, कोई ना कोई मेंबर 3 से बड़ा, कंफर्म। अब इससे बड़े में कितने मेंबर 2 से बड़े होंगे? फाइनाइट कि इनफाइनाइट? अगर फाइनाइट हुए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो इससे बड़े कितने मेंबर होंगे? इनफाइनाइट मेंबर्स होंगे। उनमें से किसी के साथ सफिक्स तो 2 से बड़ा होगा, N2 से मिलेगा ना, हम उसको चूज करेंगे। ऐसे N3 इससे बड़े कितने होंगे? इनफाइनाइट, कोई ना कोई सफिक्स इससे बड़ा होगा तो हम ये चूज कर लेंगे। 3 से बड़े कितने मेंबर हैं? एक तो मिलना ही है, बट ऐसे कितने मेंबर मिलेंगे? अगर फाइनाइट हुए तो उनका सुप्रीम एग्जिस्ट कर जाएगा, मिला के सीक्वेंस हो जाएगी बाउंडेड अबव। तो देयर आर इनफाइनाइट मेंबर्स विच आर मोर देन 3, सो विच आर मोर देन 3 एज वेल एज A and 2। इन दोनों का मैक्सिमम कितने बड़े? इन दोनों से इनफाइनाइट, इससे भी बड़ा और इससे भी बड़ा। कितने मेंबर मिलेंगे हमको? इनफाइनाइट। उसमें से वो चूज करेंगे जिसका N3 क्या हो? N2 से बड़ा हो। मिलेगा नहीं मिलेगा? बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट सच मेंबर, किसी ने किसी सफिक्स क्या होगा? N2 से तो बड़ा होगा। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं कि मुझे सिखाया ये गया था, जब सब सीक्वेंस बनती है तो जो सफिक्स होते हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं, सफिक्सेस, है ना। सीक्वेंस हमेशा इंक्रीजिंग नहीं होती, मोनोटोनिक। ये जो सबसीक्वेंस है ना, ये A N K, दिस इज सबसीक्वेंस। जो N1 N2 इसमें रिलेशन होता है, इसमें नहीं होता। ये तो कुछ भी हो सकता है, कंफर्म, ये कुछ भी हो सकता है। जैसे आपका A3K सफिक्स कैसे हैं? 3 6 9 12 एंड सो ऑन। और एग्जांपल नंबर 1 इसके लिए है। ये कैसे आ रही सीक्वेंस? आ रही मोनोटोनिक क्या? ना, जब पहले टर्म रखोगे क्या आएगा? -1 1 -1 1। ये मोनोटोनिक नहीं आती, ये सफिक्सेस हमेशा मोनोटोनिक होते हैं। यहां पर इसीलिए मैंने कहा कि मुझे सब सीक्वेंस मिली है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मिली है, बिकॉज ऑफ कंडीशन नॉट बाउंडेड अबव। सो इफ अ सीक्वेंस इज नॉट बाउंडेड अबव, देयर एग्जिस्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ए एन के, और साथ में कहानी और उसके बारे में ये है कि जो ए एन के है वो के से बड़ा है। ए एन के मतलब ए एन 10 जो भी मेंबर आया है, एन 10 पता नहीं कौन सा मेंबर सफिक्स था, दिस ग्रेटर देन 10, ए एन 11 ग्रेटर देन 11। साथ में ये भी कहानी है कि ए एन 10 इज लेस देन ए एन 11, ये भी ढूंढा हमने उस वाले को एन 11 बोला जो इससे बड़ा था, और पक्का मिलेगा ये। क्यों? क्योंकि उसके बड़े हमारे पास कितने मेंबर्स हैं? इनफाइनाइट मेंबर्स हैं। कंफर्म? तो एवरी अनबाउंडेड सब सीक्वेंस हैज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और बोथ टाइप ऑफ सब सीक्वेंसेस। अगर बाउंडेड बिलो भी नहीं है, अबव भी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल 6 नाइदर बाउंड बिलो नॉर अबव, दोनों तरफ मिल जाएंगी। कंफर्म हो गया यहां पर लिमिट पॉइंट। ठीक है, अब ये सोचिए जो किसी सब सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट होगा वो सीक्वेंस का भी लिमिट पॉइंट होगा। तो दो छोटे छोटे नोट और लगाइए। नेक्स्ट नोट, टू एनालाइज सीक्वेंसेस वी आर ट्राइंग टू कलेक्ट सर्टेन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ऑब्जर्वेशंस। एक जैसे ये ऑब्जर्वेशन था हमारा कि बाउंडेड होगी सीक्वेंस, लिमिट पॉइंट होगा ही होगा। इट्स तो थ्योरम, इट इज सिंपल ऑब्जर्वेशन। कौन सा कौन सा नोट? ठीक है, आप एग्जांपल दो जो बाउंडेड अबव ना हो। मैं सीक्वेंस करता हूं, बताओ। 4 8 9, ठीक है, ये मेरी सारी अनबाउंड अबव है। इसमें क्या है? ए एन। आप ना इसमें ए एन के जो लीजिए आप, ए एन के, वो क्या आएगा? एन के आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है? ए एन इक्वल टू एन ही तो है। ठीक है, अब पहला मेंबर, अब मान लीजिए 1 से बड़ा किसको ले सकते हो आप? इस ए एन में कौन से मेंबर है पहले ये बताओ? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसको बना लो A1, ये 1 से बड़ा हो गया। इसको बना लो एक और छोड़ के A2, ये दोनों से बड़ा हो गया। ये A2 ये 2 से भी बड़ा है, इससे बड़ा। इसको बना लो A2, तो ये 2 से भी बड़ा है, और A1 से दिस इज व्हाट? A1, दिस इज A2 एंड सो ऑन। तो मैंने सब सीक्वेंस जो A N K बनाई है वो क्या सब सीक्वेंस है मेरी? N+1। व्हाट इज N1? A N1 2 A N2 मतलब K+1 3। अब N1 1 से बड़ा है, दिस ग्रेटर देन 1, दिस इज ग्रेटर देन 2 एंड 1 बोथ, और सफिक्स भी है ना। देखते जाइए इसको, ये कौन सा फिक्स है? 3 है। ये कौन सा फिक्स है? 2 है। ये सफिक्स कौन सा है? N2 किसको बनाया हमने? ये 2 है ना। व्हाट इज AN2? दिस इज A2 ना, A3, दिस इज व्हाट? A2। तो ये भी बड़ा मिलता है, नहीं मिलता जा रहा है। यू कैन कंस्ट्रक्ट इजीली, और काउंट एग्जाम्पल ढूंढे जाते हैं। एग्जाम थ्योरम के सपोर्ट में एग्जाम्पल नहीं ढूंढे जाते हैं। दैट इज ट्रू फॉर एवरी सीक्वेंस, है ना। एवरी यू कंस्ट्रक्ट एनी सीक्वेंस, टेक एनी सीक्वेंस विच इज अनबाउंड बिलो और अनबाउंड अबव, इट विल गिव यू अ सब सीक्वेंस विच इज गोइंग टू माइनस इंफिनिटी, गोइंग टू प्लस इंफिनिटी। वो चर्चा नहीं करनी है अभी। नेक्स्ट नोट क्या लिखा रहा आपने? अच्छा, भुला भी दिया आपने। एवरी सब सीक्वेंस ऑफ अ सीक्वेंस, ये पहले भी लिखाया था, इस रेफरेंस में लिखा रहे हैं हम। एवरी सब सीक्वेंस ऑफ अ सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस इटसेल्फ। Sequence itself, and so every limit point of a subsequence, लिमिट नहीं जानते अभी, so every limit point of a subsequence, every limit point of a subsequence is also that of sequence, not conversely. Every limit point of a subsequence is also a limit point of
सीक्वेंस, दैट ऑफ सीक्वेंस, नॉट कन्वर्सली। सब सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट मिल गए तो सीक्वेंस के मिल जा रहे हैं, बस सीक्वेंस के पास है तो पता नहीं वो लिमिट पॉइंट कोई और है, सब सीक्वेंस कोई और, बट एक भी सब सीक्वेंस लिमिट पॉइंट आ गया देन सीक्वेंस लिमिट पॉइंट होगा, कंफर्म जरूर होगा। इफ अ सब सीक्वेंस हैज लिमिट पॉइंट देन सीक्वेंस हैज लिमिट पॉइंट, नॉट कन्वर्सली 1 1 1 2 1 3 1 4 1 n, दिस अ सीक्वेंस। इसमें 1 कितनी बार आ रहा है? इनफाइनाइट टाइम। बट टेक सब सीक्वेंस ऑफ इवन टर्म्स, दैट इज 1 2 3 4 5, इट डजंट हैव एनी लिमिट पॉइंट बट सीक्वेंस हैज लिमिट पॉइंट, है ना। सो अ सीक्वेंस हैज लिमिट पॉइंट, सब सीक्वेंस हैज लिमिट पॉइंट इंप्लाइज सीक्वेंस हैज लिमिट पॉइंट। उसके निबोर्ड में सीक्वेंस की मेमोरी तो आ रहे हैं, कंफर्म। नेक्स्ट एन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, आपने नोटिस किया कि जब सीक्वेंस बाउंडेड होती है तो लिमिट पॉइंट होता है, बट बिना बाउंडेड हुए भी लिमिट पॉइंट हो जाता है। आपके दिमाग में सीक्वेंस को देखते ही 4-5 चीजें आनी चाहिए, इज इट बाउंडेड और नॉट, 1 इट इज मोनोटोनिक और नॉट, 2 इफ इट इज नॉट मोनोटोनिक कैन वी गेट कॉम्प्लीमेंट्री सबसीक्वेंस विच आर मोनोटोनिक। कई बार हो जाता है ना सीक्वेंस मोनोटोनिक ना हो बट वी हैव अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। एग्जांपल नंबर 11, एग्जांपल नंबर 1 इवन, सारी इवन की क्या है 1 1 1 मोनोटोनिक, सारी ऑड -1 -1 मोनोटोनिक, कांस्टेंट है दोनों। तो फर्स्ट इज नॉट मोनोटोनिक बट ऑड एंड इवन सबसीक्वेंस आर मोनोटोनिक, क्लियर। एग्जांपल नंबर 11 इज ब्यूटीफुल एग्जांपल, an+2 इक्वल टू 1/2 an + 1/2 an + 1। इसमें देखा था हमने कि a1 a3 a2 ऐसे और एंटर करना जब टर्म शुरू हुए तो मुझे जो a2k और a2k -1 ये अच्छे मिल गए, a2 a4 a6 a1 a3 a5 ऐसे मिले थे इस बारे में, क्योंकि a4 यहां एंटर करेगा तो a2 छोटा हो जाएगा, a5 इधर से एंटर करेगा a3 से बड़ा हो जाएगा, है ना। सो द सीक्वेंस इटसेल्फ बिकॉज ऑफ दिस इज नॉट मोनोटोनिक बट हैज कॉम्प्लीमेंट्री इवन एंड ऑड विच आर मोनोटोनिक। ये काम की चीज है। आप जब ये बोलते हो सर क्वेश्चन नहीं निकल रहे हमसे, क्वेश्चन नहीं हो रहा हमसे, हम पढ़ रहे हैं असाइनमेंट सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आपने बोल दिया हमने सुन लिया, बट कहीं ना कहीं तो सॉल्यूशन ढूंढना होगा आपको ना। आप ये नहीं कर सकते कि यार आपने जैसे पढ़ा उससे वजह से नहीं हो रहे, अकेला मुझे वजह मत बनाओ, बट ट्राई टू फाइंड द रीजन योरसेल्फ एज वेल। यू मे बी मिसिंग डेफिनेशन, you may be missing the implication if definition is correct. So for a given question of sequence, what is task? First find out that, and before going to actual question, the homework, okay, for any sequence I should know these things first of all. तब मैं पूछने जाऊं it is bounded or not, it is monotonic or not, if it is not monotonic can we have at least odd even subsequent which are monotonic or not, कम से कम उसके बारे में जान लेना, कोई और छोड़ भी दें ये। और can I guess limit point of this sequence? कुछ दिख रहे हैं मेरे को, कहीं कोई रिपीट करता हुआ, क्योंकि बाउंडेड है तो पक्का लिमिट पॉइंट तो होगा। विच इज दैट लिमिट पॉइंट, कैन आई गेस? नो, नॉट ऑलवेज नेसेसरी, यू कैन